శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. స్మరామి హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ. కళ్యాణోత్సవం సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ చేతులు జోడించి స్వామివారి పాదాలను శరణ కోరుతూ సంకల్పం శ్రద్ధగా పలకాలి. అందరూ చెప్పండి. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మాంగం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనస్సులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహకుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య
ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీయాత్యాసిత వక్షసం ஸ்ரீதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் அகம்பஜே என்று அந்த திருமலையப்பனை செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதியே அருணா. இதோ அந்த பக்தர்கள் நேரடி ஒளிபரப்பில் எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிப்பதற்காக திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பகவானையும் நாச்சிமார்களையும் சேவிக்கலாம். திருமலையப்பன் இதோ நமக்கு சர்வாலங்கார பூஷிதனாய் காட்சி தந்து கொண்டிருக்கிறான். அந்த பகவானை சேவிக்கலாம். ஆனி மாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் விசேஷமான இந்த நன்னாளிலே பூசம் நட்சத்திரத்துடன் கூடிய த்விதியை திதி அன்று கல்யாண உற்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்க இருக்கிறோம். ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சஹசிரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானனே என்று அந்த ராமச்சந்திர பிரபுவையும் சற்று சேவிக்கலாம். இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய மலையப்ப சுவாமியினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜனத்தை சேவிப்போம். ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபு சூரிய வம்சத்திலே உதித்த சந்திரன் அயோத்தியில் அவதரித்தான். திரேதாயுகம் சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷ நவமி புனர்பூசம் நட்சத்திரம் சீதாதேவியாக அந்த மனைவியாக இங்கே ஸ்ரீதேவி அவதாரமானால் பொறுமையிலே பூமாதேவி என்று அப்படி ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனை மலையப்ப சுவாமியுடைய अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जकर्मणि स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यङ्कर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाक्यञ्जकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओं धारासुरप्तशुरमानशेषु दुरत्तरिच परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचरकं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशदं वरुणये सहस्रं यज्ञया पाशावितता पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमरुतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रत्येतसमावाहयामि दत्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संगीतक्रसमन्वितं जगावतं शृङ्गकेतं सुपुष्पवर्धवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्माद्जामहे त्वा विश्वेशदात्मं हितो न शम्भो वैराजन्ते दोदन्निधत्तां प्रयिष्यामदेशो विबुधानामनादर्यामि सस्तान्दनिदान् दधातु पद्माकारमण्डलिवं भो विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभागिनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपति जगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि
सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राण्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यज कुर्यात् समरिमारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वात्स्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे पचक्षुरातनं तद्विप्रासो विमन्यमोजाग्रभागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्त्वरस्य त्रिविनोदास्सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्न द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीदोपव्युषं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाग्नया भगवत्यङ्गरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्चकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रमा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदाग्नया भगवत्यङ्गरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्तिर्ध्यास्म हव्येर्दमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधाने हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवेम सरतः समीराः ओम भूः भूर्भुवस्वरं पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मऋध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मऋध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे तथा महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्गदेहनः वशतीर्वमातरः तस्मा आरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मधा आपो जनयथा जनः ओम पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोदास पुनात्मा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनमोधय पुनन्त विश्व आजमः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीप्यते अग्ने कृत्वा कर्तोकं वृणु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितदमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागाते यस्ये बक्वे स्तनवो वेतपृष्ठाः तजामदन्त सदमार्त्येषु वजग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातप्राणेने शिरोमयो भोः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावनी यज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि श्रुतिडम्बादरिष्वणा पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहि क्षीरकं सत्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तुमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोपयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीते सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनादवा
जातवेदा मूर्तयन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गादिं यज्ञाय गादिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः मूर्ध्वञ्जगातभेषजं शन्नो अस्तुद्वने सञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रात्यां दिशि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशि ग्रहाः पशवो मार्जयन्तां उदेत्यां दिश्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि जिज्ञः संवत्सरो जिज्ञपधर्मार्जयन्तां मदोधराधरेर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्त दिक्माः सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयोरसास्य येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवेः कवीनामृतर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रानागस्वतिर्वणानागं सोमः पवित्रमत्येति नरेभन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदासकं यदास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனத்தை சேவித்தோம். அடுத்ததாக நாம் இப்பொழுது காண இருப்பது திருமுலை சாற்றுதல். திருமலையில் உள்ள 7 மலைகளில் ரிஷபாத்ரி, ருஷாத்ரி, கருடாத்ரி, அஞ்சனாத்ரி, சேஷாத்ரி, வெங்கடாத்ரி, நாராயணாத்ரி இவைகள் என்பது நமக்கு தெரியும். ஆத்மஸ்வரூபமான பரமாத்மாவே 7 மலைகளிலும் மேல் இருப்பவன் வெங்கடேஸ்வரன். நாராயணன் என்றால் ஜீவன். இவை அனைத்திற்கும் ஆதார பூதமாக ஸ்வரூபமே நாராயணாத்ரி மீது இருக்கும் திருவேங்கடவன். 7 சக்கரங்களை தாண்டினால் ஆனந்தம் ஏற்படும். இது யோகாவில் நமக்கு தெரியும். ஆனந்த நிலையம் பிரம்மஸ்தானத்திலே இருக்கிறது. இங்கு 1000 இதழ்களை கொண்ட தாமரை புஷ்பங்கள் இருக்கிறது. எப்படி 1000 இதழ்களின் நடுவிலே தாமரை புஷ்பம் இருக்கிறதோ அதேபோல் 7 மலையானின் மீது வேங்கடவன் உள்ளான். 7 மலைகள் ஏறும் பொழுது ஒரு ரகசியம் ஒளிந்துள்ளது. அது என்னவென்றால் அந்த 7 மலைகளும் சால கிராமங்கள். அங்குள்ள செடிகள், கொடிகள், புற்று, பறவைகள் ஏதாகிலும் சரி அனைத்தும் மகரிஷிகளின் அம்சம். அன்னமாச்சாரி அவர்கள் காலிலே இருந்த செருப்பை கழற்றிய பின்புதான் அவருக்கு மலையின் தரிசனமே கிடைத்ததாம். ராமானுஜர் கூட மலைகள் எல்லாம் சாலக்கிராம சிலைகள் ஆகையால் பாதங்களால் மலைகளை மிதிப்பதென்பது விருப்பமில்லாது முழங்கால்களை கயிற்றினால் கட்டிக்கொண்டு நகர்ந்து கொண்டு மலை ஏறினாராம். அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலை அப்பன் அந்த 7 மலைகளிலே நித்தியவாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறான். அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்க இருக்கிறோம். பகவானே வெங்கடவனே ரிஷபாதிருடனே கோவிந்தா கோவிந்தா, கருடாருடனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று செவிக்கலாம் திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை. ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ரக்ஷைகளிலே நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து பூஜை ஆரம்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இந்த ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் கரிஷ்யே. ஓம் யமர்ப்பயந்தி மனயோ ஹவிரயோஜோ ஹிதானர்புதா விராஜன்னே தம்மயதோஜாயஸ்யானநாக்னம் விபினானி வதந்து. ஓம் சேஷமாவாஹயாமி, சஹஸ்ரதீர்ஷமாவாஹயாமி, அனந்தமாவாஹயாமி, நாகராஜமாவாஹயாமி.
रक्षासूत्र अधिष्ठान देवताभ्यो नमः शेषाय नमः आसनं समर्पयामि शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिरनर्मणः स्वस्ति स्वस्तिद्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवावन्त्रभवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनूजरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दशदाज्ञादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्ति जानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाक्यसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशोणावामिवारोहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा जदार्क्ष्यम् प्रियातपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभागं शुभाम् ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது ரக்ஷாபந்தனம், காப்பு கட்டுதல். இந்த காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்திலே எம்பெருமானுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் கரங்களிலே அணிவிக்கப்படும் கயிற்றிற்கு முறையை பூஜை செய்து இதோ இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். எங்கெல்லாம் ராமநாமம் ஒலிக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் வாயுமைந்தன் வீர ஹனுமன் அருள் தருகிறான். வீரம், பலம், புத்தி, சாதுரியம் இவற்றை தாராளமாக வாரி வழங்கும் ஹனுமன் அன்று ஸ்ரீ ராமபிரானிடம் வானர ராஜன் சுக்ரீவனின் ஆலோசகராக மாறினாராம். பிறகு லங்கை அரசன் ராவணனிடம் தூதுவனாக சென்றான். சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த சீதா பிராட்டிக்கு ஸ்ரீ ராமபிரானின் தூதுவராக சென்றார். ராமாயண காவியத்தில் ஹனுமனுக்கு ஒரு தனி இடமே இருந்தது. பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயரின் அம்ச விசேஷம், அதாவது கருடமுகம். இந்த கருடமுகனை சேவித்தால் தீராத பணி, வியாதிகள், விஷக்காய்ச்சல் இவற்றை நீங்கி அவன் நம்மை அருளி செய்வானாம். அடுத்ததாக வராகமுகம், செல்வத்தை கொடுத்தருளும் சக்தியை கொண்டவன். மூன்றாவது ஆஞ்சநேயர் முகம், நெற்றி கண்ணுடன் ருத்ராம்சமாய் எதிரிகளை அழிக்கும் அம்சமாய் விளங்குகிறது. 4 நரசிம்ம முகம், செய்வினை, ஏவல், பில்லி, சூன்யம் இவற்றை அழிக்குமாம். 5வது ஹயக்ரீவர் முகம், நல்ல வெகுமதி, கல்வி, சொல்வளம் ஆகியவற்றை வழங்குபவன், நல்வாக்கை கொடுப்பவன். இப்படி 5 முகங்களுடன் ஆஞ்சநேயரை சேவிக்கும் பொழுது எத்தனையோ நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட ஆஞ்சநேயர் சேவிக்கும் சதா சர்வ காலமும் ராமநாமம் ஜபித்து கொண்டே இருக்கும் அந்த ராமபிரான் அவதாரம் எடுத்தவன் இதோ இங்கே திருமலை அப்பனாக திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷா பூஜையை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள இருக்கிறார். பஞ்சமுகத்துடன் விளங்கும் ஹனுமன் இங்கு சங்கு சக்கரத்துடன் பெருமாள் அம்சமாய் காணப்படுவாராம். நெற்றிக்கண்ணுடன் சிவ அம்சமாய் பவிஷ்ய ராஜனானான் என்றும், அதாவது அடுத்த பிரம்மதேவன் ஹனுமன் என்றும் போற்றப்படுகிறார். அப்படி தன் புகழை உள்ளுக்குள் அடக்கிக் கொண்டு வினயமாய் கைகோத்து சேவிக்கும் ஹனுமனின் சுவாமியான ராமபிரான் ஆகிய திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது பகவானுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி, பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. இந்த ஸ்ரீதேவி, பூதேவி பிராட்டிமார்கள் கூட எம்பெருமானுக்கு வக்ஷஸ்தலத்திலே நிவாசம் செய்பவர்கள். அந்த எம்பெருமானுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே நிவாசம் செய்வதால் தான் அவன் ஸ்ரீனிவாசனானான். இவர்கள் ஸ்ரீ என்றே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, ஸ்ரீ தரா ரமண கோவிந்தா என்று அவர்களால் போற்றப்படுகிறார்.
இவர்கள் அந்த வக்ஷஸ்தலத்திலே நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருந்ததால் தான் ஸ்ரீனிவாசனுக்கு ஒரு தனியான மதிப்பு. அவனை சேவிக்கும் விதானமே வேறு. அப்படி ஸ்ரீனிவாசனை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். கல்யாண உற்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதேபோல் அயோத்தியிலே ராமபிரானுடைய தர்பார், வசிஷ்டர் முதலிய பிரம்மாதி ரிஷிகளும் ராம லக்ஷ்மணர்கள் முதலியவர்களும் காத்திருக்க, வால்மீகி இயற்றிய காவியத்தை சிறுவர்கள் இருவர் இசைத்து கொண்டே இருந்தார்களாம். ஆம், வால்மீகி ராமாயணம் அரங்கேற்றம். சகோதரர் புடைசூழ ராமபிரான், அவன் அடியின் கீழ் அமைதியான வடிவம் கொண்ட ஹனுமன். குற்றம் காண முடியாத அந்த காவியத்திலே எல்லோரும் லயித்திருக்க, ஒருவர் மட்டும் சஞ்சலத்திலும் அச்சத்திலும் உள்ளார் என்று. யார் என்று என்ன குற்றம் சொல்வார்களோ என்ற காவிய அரங்கேற்றம் நல்லபடியாக நடக்க வேண்டுமே, பதற்றம் இல்லாமலா இருக்கும். அப்படி வால்மீகியின் அச்சத்திற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. அதற்கு ஹனுமன்தான் காரணம். அவர் நவவியாக்கரண பண்டிதர் அல்லவா? பாலகாண்டம், அயோத்தியா காண்டம், அரண்ய காண்டம், கிஷ்கிந்தா காண்டம், காவியத்தின் பெருப்பகுதி ஒரு தடையும் இல்லாமல் முடிந்ததில் மகிழ்ச்சிதான் அவருக்கு. ஆனால் இதி கிஷ்கிந்தா காண்ட சமாப்தா என்று சொல்லும் பொழுது ஹனுமத் காண்ட ஆரம்பியத்தே என்று சிறுவர்கள் கூற ஹனுமனுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது. கவியே, நீங்கள் நிறுத்துங்கள், சிறுவர்கள் பாடுவதை நிறுத்தச் சொல்லுங்கள், தலைப்பை மாற்றுங்கள், இல்லையேல் உம்மை கடலில் வீசிவிடுவேன் என்றாராம். அவையவர்களுக்கு ஆச்சரியம். ராமபிரானோ அமைதியாக இருந்தார். இப்படி நடக்கும் என்று தெரிந்து வால்மீகி ஹனுமனை கேட்டார். ஓ அஞ்சனை மைந்தா, காவியத்திலே என்ன குற்றம் கண்டீர்கள்? முக்திக்கு வித்தாகும் புனிதமான ராமசரித்திரத்திலே ஒரு காண்டத்திற்கு தலைப்பாக இந்த பாமர குரங்கின் பெயரை சூட்டுதல் பொருத்தமற்றது, பெரிய குற்றம் என்றாராம் ஹனுமந்தன். அப்படி ஆஞ்சநேயர் சேவிக்கும் ராமபிரான் இதோ இப்பொழுது நமக்கு அவதாரம் எடுத்து திருமலையிலே மலையப்பனாக நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். கல்யாண உற்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அர்ச்சக சுவாமி அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார். சேவிக்கலாம். அந்த அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்து இறுதியிலே பூர்ணாகூத்தியுடன் அந்த ஹோமம் நிறைவு பெறுகிறது. இப்பொழுது அக்னி ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். அந்த அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि उपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ओम ये तोन्विन्द्रं स्तमाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्ध्वांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धा विरोधिमिः शुद्धार्यं निधार्य शुद्धो ममत्ति सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनोर्यं शुद्धो रुद्राणि दासदे शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं शिदासदे मय देवात्र मनवाजिरन्तां मय्यासेरस्तु मय देवहूतिः दैव्याहोता रामणजन्त पूर्वे विष्टास्याम धर्मासुमीनाः मह्यं यदन्त ममयान हव्याकोति सत्यामनसो मे अस्तु ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजदामि देवी षडर्वे रणकृणोत विश्वे देवास यहमेर्यद्धं माहास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्विषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्रुत्थादनिहं यमाहकं शने गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः गृहप्रदेको कृतयोनिरग्निकृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वा चरितो वहन्ति कृतं पिबन् श्रीगिजायक्षिदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतसृजो वेन आवः सबुद्ध्रिया पुपमा अस्य विष्टा सदस्य योनिमसदस्य विवः ओम भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरादे सारण्यं विदत्यकं सुभेगं तस्त्रमणं योदराज तस्मै ओम भूस्वमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि बिन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नागस्य पृष्ठे यजमानो सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमानं च धेः
ఓం ప్రోక్ష్య సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధయత్మన్నాగస్య పుష్టే యజమానోస్తే సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ ధేహి ఓం ప్రోక్ష్య పవిత్రే स्तो వైష్ణవ్యే स्तो జిగ్నయే स्तो వాజిపూతే स्तो విష్ణోర్మనధా పూతే स्तो జిగ్నస్య पावनेस्तः परुषर्ष पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविद प्रसवनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पुमो अग्रे गुमोग्रयं यज्ञं नियताग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत पुत्रतूर्ये युजमिन्द्रमवृणीर्थं पुत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णव प्रणीष्यामि गिरमानवाजं गिच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पुष्टे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणय सोमापप्रणीष्यामि गिरमानवाजं गिच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पुष्टे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणय कोमप्रणयत समप्रणयत्वापो नेमि प्रणयानि यज्ञकं सुखं साधयन्तु नः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषामावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये दृष्टिर्वभामि ब्रह्मणे दृष्टिर्वभामि इन्द्राय दृष्टिर्वभामि अग्नये दृष्टिर्वभामि सोमाय दृष्टिर्वभामि अग्नये दृष्टिर्वभामि सोमाय दृष्टिर्वभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टिर्वभामि प्रजापतये दृष्टिर्वभामि ब्रह्मणे दृष्टिर्वभामि इन्द्राय दृष्टिर्वभामि वसुभ्यो दृष्टिर्वभामि मरुभ्यो दृष्टिर्वभामि रुद्रेभ्यो दृष्टिर्वभामि आपावोपस्पृश्या श्री महाविष्णवे दृष्टिर्वभामि बृहस्पतये दृष्टिर्वभामि मित्राय दृष्टिर्वभामि वरुणाय दृष्टिर्वभामि आदित्येभ्यो दृष्टिर्वभामि अस्मिभ्यां दृष्टिर्वभामि पूष्णे दृष्टिर्वभामि कक्षाय दृष्टिर्वभामि कक्षदेवता सोमाय दृष्टिर्वभामि औपासनयज्ञाय दृष्टिर्वभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टिर्वभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टिर्वभामि आद्यं तृप्यधिस्रयामि चरं तृप्यधिस्रयामि अग्ने ज्योतिरसि समितिषि स्वाहा अमृतमशमारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रत्यष्टकं रक्ष प्रत्यष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वासपदापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासविधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च्या अक्षत आज्यतरुभिः इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त्वेकाच शतं च सहस्रं च आयुतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्पदं च न्यर्पदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्थश्च इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जराप्रभवे नमः विदुत्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा षष्टिशतसहस्रान्यगतमक्षयमर्पणमानय अयन्त यत्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्वमर्तस्वजेतमर्तगिरास्मान् प्रजगा पशुर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येन समेधय स्वाहा वायुयादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्मिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्य ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः
వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నో ఆఘారాంతే స్వరమంత్ర అక్షరక్రియా దోష ప్రాగచిత్తార్థమతో దేవాదశక్వైష్టమహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనమదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిత ప్రసుమ ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభి స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధేపదం సమూఢమస్య భాగం శ్రే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతగతో వ్రతాని పస్పథే ఇంద్రస్య గిత్యస్సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దిమే విచక్షణాదిరగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో వన్యమోజాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్రమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భువ శుభ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్తాః అనమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసమిత ప్రాసావీః మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేనా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశాడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేనా చంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేనా అందపు శ్రీ వెంకటేశాడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిత్తే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద పేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద పేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా
विजयोरथतात्सवम् कामस्य तृप्तिमानन्दम् तस्याग्ने भाजयेहमा मोदः प्रमोद आनन्दः मुष्कयोर्निहितः सपः श्रुत्वेव कामस्य तृप्त्यानि दक्षिणानां प्रतिग्रहे मनसश्चित्तमाकूतिम् वाचः सत्यमशीमहे सुमङ्गलेरियं वधूरिमागुं समेत पश्यताम् सौभाग्यमश्मे दत्त्वा याधास्तम् विपरेतना रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः श्रियमेवावरुन्धे सीते वाते पुनर्निवेद्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे ओम श्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरमितशक्त्या प्रयमाणस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदं व्यक्ताख्यसप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराहकूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् आताल विताल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्तण्डि शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यलकावते यशोपते इत्यष्टदेवपुरी विराजिते इंद्राग्नियम निर्दिवर्णवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकबालकपरिपालिते लोका लोकाजलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पिते क्षीरसुप्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्भूप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्पराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विन्ध्यवारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुषहारीनावृतभद्राश्वकेतुकमालक हिरण्यकर्मणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुनां मृगभस्ति पुन्नाक गन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे मम अनेक जन्मसु यः जन्म निचायेतत् क्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धके रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्धं दश पूर्वेषां दशा परेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीभागलोहितधामा तपसङ्घातकालसूत्राधि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्या तले सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावशानेकैकजनावकर्षणक्रमेण सर्वरास्यवकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससित्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तपणवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुत्स्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः श्रीविखणोमणीन्द्रमदानुसारविर्भक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तगुह्यधर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सिंहचक्रशारङ्गकौमोदकी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवतशास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रभरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रभरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृते स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परमासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रभरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसमारहस्पत्य भारद्वाज
त्रयाऋषेय प्रभरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवस्यमन आप्नुवान उर्ववेदलमञ्जारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपदीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयाऋषेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवीनाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवेदभ्यं ब्रह्मलोकजिगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुचीदाय सुमेधचेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டோம். தொடர்ந்து மாங்கல்ய பூஜை சேவிக்க இருக்கிறோம். ராமபிரானுடைய கல்யாண குணங்களை பார்க்கும் பொழுது எத்தனையோ அவரிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. ஏனென்றால் தசாவதாரங்களிலேயே மானிடம் அவதாரம் எடுத்தது 2. அதிலே ஒன்று ராமாவதாரம், மற்றொன்று கிருஷ்ணாவதாரம். இப்படி அந்த 2 அவதாரங்களும் நமக்கு எத்தனையோ பாடங்களை புகட்டியது. அப்படி திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் அந்த திருமலை அப்பனை தினந்தோறும் சேவித்துக் கொள்ளுகிறோம். அனைத்து கைங்கரியங்களிலும் சேவைகளிலும் யார் ஒருவர் ராமநாமத்தை கேட்கிறாரோ அல்லது சொல்லுகிறாரோ, யார் ஒருவர் ராமாயணத்தை காது குளிர சொல்லுகிறார்களோ அவர்களுக்கு 16 விதமான பேர்கள் கிடைக்குமாம் என்று வால்மீகி மகரிஷி கூறியுள்ளார். கல்வி, அறிவு, ஆயுள், ஆற்றல், இளமை, துணிவு, பெருமை, பொன், பொருள், புகழ், நிலம், நன்மக்கள், நல்லொழுக்கம், நோயின்மை, முயற்சி, இப்படி வெற்றி, இப்படி 16 வகையான நலன்களை நமக்கு கொடுப்பாராம். உலகத்துக்குள்ளே கஷ்டங்கள் அனுபவிக்காத மனிதர்களே இருக்க முடியாது. என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, பகவான் கிட்டே சரணாகதி பண்ணிட்டோம்னா போதும் என்று அவை வந்த இடம் தெரியாமல் ஓடிப்போய் விடுமாம். பகவானே நீயே பார்த்துக்கோ, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, உன்னை முழுதும் சரணாகதி செய்யத்தான் எனக்கு தெரியும் என்று ராமாயணத்திலே சரணாகதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ராமாயணத்தில் ஒவ்வொரு காண்டத்திலும் சரணாகதி வரும். பாலகாண்டத்திலே தேவர்கள் சரணாகதி, அயோத்தியா காண்டத்திலே ரிஷிகள் யாகத்தை காப்பாற்ற சரணாகதி, கிஷ்கிந்தா காண்டத்திலே சுக்ரீவன் ராமபிரானிடம் சரணாகதி, சுந்தரா காண்டத்திலே ராமரே சமுத்திர ராஜனிடம் சரணாகதி பண்ணுவார். யுத்த காண்டத்திலே விபீஷண சரணாகதி வரும். சரணாகத வத்சலன் என்று ராமருக்கு ஒரு பெயரே உண்டு. ராவணனோடு போர் புரியும் பொழுது கூட இன்று போய் நாளை வா என்று பெருமாள் சொல்லுகிறார். என்ன காரணம் என்றால், நாளையாவது இவன் சரணாகதி பண்ணிட மாட்டானா என்று நினைத்தாராம் ராமபிரான். காருண்ய குணத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாய் விளங்கியவர் ராமபிரான். ஸ்ரீரங்கத்திலே 8வது நாள் உற்சவத்தின் பொழுது
பெருமாளுக்கு மோகினி கோலம் தாயார் போல் அலங்காரம் பண்ணிவிடுவார்களாம். அவருக்கும் கண் அலங்காரம் பண்ணி முடித்த பிறகு பராசர பட்டரிடம் பெருமாள் கேட்பாராம், நான் தாயாரைப் போலவே இருக்கேன் இல்லையா? அதே மாதிரி வைர ஊசி மாலை, புஷ்ப பாவாடை, அட்டிகை, கூந்தல் இதெல்லாம் பார்த்தா தாயார் மாதிரியே இருக்கா இல்லையா என்று கேட்பானாம் பெருமாள். பெருமாள் கேட்கும் பொழுது பட்டர் சொல்லுவாராம், இல்லை, உம்மிடம் தாயாரின் கண்களில் தெரியும் அந்த காருண்யம் இல்லை என்று. அந்த காருண்ய ரூபமாக கருணாமூர்த்தியாகவே இருந்தவர்தான் ராமபிரான். அப்படிப்பட்ட அந்த ராமபிரான் அவதாரம் எடுத்தவன் இதோ இங்கே நமக்கு கல்யாண உற்சவத்திலே மலையப்பனாக எழுந்தருளி பக்தர்களை அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறான். பகவானே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று, வைகுண்டவாசா வெங்கடவா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்த ஜலத்தால் அலம்பி அதற்கு மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு புஷ்பங்கள், திருத்துழாய் போன்றவை, அட்சதை போன்றவைகளால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய வக்ஷஸ்தல நாயகிகள் ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுடைய மாங்கல்யங்களுக்குத்தான் இப்பொழுது பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த மாங்கல்ய பூஜையை நாமும் செவிக்கலாம். அதேபோல் அந்த ராமாவதாரத்தில் ஆகட்டும் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஆகட்டும் நமக்கு ஏராளமான விஷயங்களை தெரிவித்தவர்கள் அவர்கள், அந்த அவதாரங்கள். அதேபோல் அந்த தசராவின் பொழுது, அதாவது பிரம்மோற்சவ நாட்களிலே மற்றும் நவராத்திரி இறுதி நாட்களிலே கடைசி நாளன்று வன்னி மரத்திற்கு பூஜை செய்வார்கள். அது எந்த நாள் என்றால் விஜயதசமி, வெற்றி தரும் வன்னிமர பூஜை. அந்த விஜயதசமி அன்று நம்முடைய பாரத தேசத்திலே மரங்கள் சிலவற்றை தெய்வீக தன்மையாக வாய்ந்தவையாகவும் அவைகள் உறையும் இடமாகவும் மற்றும் மருத்துவ குணங்கள் உடையதாகவும் கருதி வழிபடுத்தி வழிபாடு நடத்துகிறார்கள். அப்படித்தான் அரசர்களில் மரங்களிலே ஆலமரமும் மரங்களுள் ராஜாவான அரச மரமும் இதிலே அடங்குமாம். அதேபோல் அரசின் வேர் பக்கத்திலே பிரம்மனும், மத்தியிலே விஷ்ணுவும், உச்சாணியிலே பரமேஸ்வரனும் உறைவதாக ஐதீகம். அதேபோல் காய்ந்த கிளை காம்புகள் வேள்வி செய்ய சமித்துகளாக உபயோகப்படுகின்றன. இப்படி அந்த வன்னி மரத்திற்கு எதற்கு பூஜை செய்கிறார்கள் என்றால், ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதா தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துனா நேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபகே சாஜீவ சரதசதம். ஸ்ரீதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்தோஸ்து. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதா தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துனா நேனா லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம். பூதேவ்யை நமः.
మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौलाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषधीनाकुं रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृताकुम् अनु विश्वाबुधत्वया वयं धाराबुधन्या इव अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान्
आवापामि समृद्धीकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूते क्नौलाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पति रेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्मग्रस्ताः अन्मदेन्मग्रस्ताः सरस्वतेन्मग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जकर्मणि औपासनाग्नौ सर्वप्रागश्चित्तार्थमतो देवादिशक्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अन्मदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानतरेपदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे विचक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्राजोऽपि पञ्चमो जाग्रभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्रमं वदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्मग्रस्ताः अन्मदेन्मग्रस्ताः सरस्वतेन्मग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यञ्जकर्मणि औपासनाग्नौ कर्मधात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्त होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अन्मदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदः प्रसुवा यतस्य कर्मणोतिरेरजं यत्वान्योनिमहाकरम् अग्निस्स्विष्टकृद्विद्वान् सर्वकृत्स्विष्टकं सहदं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहुरहुराहुतीनां कामानागं समर्पयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा येधोऽस्येधिषे महि स्वाहा समितसितेजो मयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्पा सप्तऋषे सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो निरापनत्वा कृतेन स्वाहा प्रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधि वनस्पतिकं दर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जीर्णं वेदज्जीर्णं ज्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं वोषधि वनस्पतिकं दर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरहरः विडाकृतेन समादित्य वृषभिः समृद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्ते मेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो ज्योस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणपितृप्यता महाप्रपिता महाश्चाक्षं यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्मग्रस्ताः अन्मदेन्मग्रस्ताः सरस्वतेन्मग्रस्ताः देवसविदप्रासावीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा संयुरास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि ममे ज्येष्ठाः वरशिष्टागह्वरेष्टोग्रं वचो अपावधेन् त्वेषं वचो अपावधेक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं माजेकृतमत्र मेधामश्वन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राप्स्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परसमो आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां वृषधयस्तदिवं गच्छ ततो न वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तोत्रयायुषां दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषाम्
आपोहिष्टामयो भवस्तानमूर्जेन्द्रामहेरणायदक्षतेयोपश्यपतमोरसस्तस्य भार्य देहनः विशतेर्ममादरः तस्मारङ्गमामभोग्यशिक्षणाय जन्मधः आपो जनयथा चनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूजासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूजासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूजासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय करन्दमयादेव परिपूर्णतस्तुते प्रागश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वैतानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्तत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च తీసి పువ్వులీయరే ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் அஞ்சனமிடுதல் பூர்ணாகுதியை சேவித்தோம். அடுத்ததாக நாம் காண இருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். வாரணமாயிரம் என்றால் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளியிருக்கும் ஆண்டாள் பாசுரங்களோடு அந்த பூமாலையும் தொடுத்தவள். நாச்சியார் திருமொழியிலே 143 பாடல்கள் எழுதி அதிலே 11 பாடல்கள் வாரணமாயிரத்திற்கும் 30 பாடல்கள் திருப்பாவை பாடல்களையும் எழுதி அந்த பகவானை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கனவு கண்டு அந்த தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே இந்த வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டினார்கள். புஷ்பங்கள் மாலைகளாக தொடுத்து அந்த மாலைகளை பெருமாளுக்கு அனுப்புவாள். அங்கே ரங்கமன்னாருக்கு தினந்தோறும் மாலைகள் தொடுத்து தான் சூடி அணிந்து கொண்டு அந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் கோவிலிலே இருக்கும் கிணற்றிலே அழகினை பார்த்து அதன் பிறகு பெரியாழ்வாரிடம் அனுப்புவாள் அந்த மாலையை. இது தெரியாத அந்த பெரியாழ்வார் ஒருமுறை பார்த்துவிட்டு வேறே மாலையை தொடுத்து கொண்டு போய் பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்க அப்போதைக்கு அந்த மாலையை அணிந்து கொண்டார். இரவிலேயே வந்து எனக்கு ஆண்டாள் சூடி கொடுத்த மாலைதான் வேண்டும் என்று கேட்க அன்றிலிருந்து ஆண்டாள் அனுப்பிய மாலைதான் அவருக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இதோ இப்பொழுது எம்பெருமான் அனுப்பிய மாலை ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டி மாலையை அணிந்து கொண்டு எம்பெருமான் தனக்கு அனுப்பியதற்காக திரும்பவும் அதே மாலையை அவருக்கே அனுப்புகிறாள் பகவானுக்காக. ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று எம்பெருமான் அந்த மாலையை தன்னுடைய கழுத்திலே சற்று நேரம் அலங்கரித்து கொண்டு மற்றொரு பிராட்டியான பூமி பிராட்டிக்கு மாலையை அனுப்புகிறார். பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிந்து கொள்ள காத்து கொண்டிருக்கிறாள். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலையப்பன் அனுப்பிய மாலையை சூடி களைந்து கொடுக்கிறாள் சூடி கொடுத்த நாச்சியார். அந்த சூடி கொடுத்த நாச்சியார் கொடுத்த அனுப்பிய மாலையை திரும்பவும் வேங்கடவன் ஏற்கிறார். அந்த மாலைகளை மாற்றும் படலம் இதோ முடிவு பெறுகிறது.
லக்ஷ்மீரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா, வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இப்பொழுது ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால் கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று, சேஷசைலவாசா ஸ்ரீசைலவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த சேஷனின் மீது சதா சர்வ காலமும் பள்ளி கொண்டிருக்கும் சேஷாத்ரிவாச கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம். அக்ஷதாரோபணம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் ஒளிபெறுகிறது. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.